लेट हो गया, शायद मैं सो गया था एक्स्ट्रा, विच आई नेवर डू, बट हो गया। टुडे इज डे 7 एंड शोल्डर्स होगा। तो ऐसे शुरू हुआ मेरा वर्कआउट, जैसे आपने अभी देखा, और म्यूज़िक के साथ थोड़ा बहुत कट करने की कोशिश करी। जो भी है, शोल्डर वर्कआउट है। एंड मैं प्रिकॉशन एक जो लेता हूँ वर्कआउट करते समय इज़ दैट जो दूध का जला हुआ होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मेरे इतने सारे इंजरीज, इतने सारी बीमारियाँ, वो सबको ओवरकम मैंने करा, और एक बीमारी तो मैं कर ही रहा हूँ अभी भी। तो मैं बहुत ओवर एक्साइटेड होकर वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। ब्रीदिंग का ख्याल रख रहा हूँ, अपना जो फॉर्म है उसका ध्यान रख रहा हूँ, एंड पोस्चर का ध्यान रख रहा हूँ, एवरीथिंग। एंड माइंड टू बॉडी जो कनेक्शन है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, सो माइंड बॉडी कनेक्शन, योगा। तो ये भी एक तरह का योगा है मेरे लिए। यहाँ पे मैं शोल्डर्स की थोड़ी सी मोबिलिटी और जॉइंट को मैं स्ट्रेंथन कर रहा हूँ इन एक्सरसाइजेस से, बिकॉज अगेन आई एम वेरी प्रोन टू इंजरी एंड थिंग्स लाइक दैट. So the cause I found was excessive stress when I was in a corporate sector working. तो इतना स्ट्रेस होता था कि बॉडी सिर्फ लैक्टिक एसिड और कॉर्टिजोल और ये सब प्रोड्यूस करता था, एंड बिकॉज ऑफ विच आई गॉट द कैंसर्स ऑल्सो, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी के बीच में रहना, हाइपर कॉम्पिटिशन एंड एटीट्यूड. आई थिंक this is a typical North India or a modern India phenomena, जहाँ पे there is no peace. Nobody allows you to live in peace. But I found my peace and I have left the corporate world. नेगेटिव थिंकिंग करना एक पैटर्न बन गया था मेरे ज़िंदगी में. तो अंदर से भी नेगेटिव सोचना, उठते ही नेगेटिव, बैठते ही नेगेटिव, खाते समय नेगेटिव, हर समय नेगेटिव. देन आई रियलाइज दैट आई वाज ओनली हार्मिंग माई सेल्फ. जिन्होंने मेरे को हार्म किया उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना. दे आर लीडिंग हैप्पी प्रॉस्परस लाइव्स. तो फिर मैं क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ?
You know, the day this realization hit me, and I'm always a slow learner. I mean, मैं ना बहुत ठोकरे खा के ही सीखता हूँ, and ये मेरा fundamental nature है. But now I've become more mature and wiser, and I don't allow people into my life that easily, or I don't get affected very easily by people's taunts या जो भी होता है, लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं. Thanks to the 3 months of intense training on my own, you can actually see the muscles on my hands and a little bit on my body as well. So, consistency pays off. And that's true. जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है. I think there can't be anything more powerful than that. हमारे साथ क्या होता है कि we live in denial. We live outside the realm of reality and think that things will happen on its own. We leave it to providence or destiny. नहीं होता है ऐसा. We have to build our lives ourselves. It's in our hands. मैं यही कह रहा हूँ अभी. Wait. Sleep in the afternoon, and I didn't know when I just dozed off. When I got up, it was already 4 o'clock. खैर जो भी है अच्छे के लिए होता है.
unless you pay, I don't think trainers will give you attention. And this is my experience of over 20 years in the field of exercise. So I learned it by trial and error, by hurting my back, by doing whatever. But I am a dheet, and I do ask them कि क्या करना है, कैसे करना है. Because unless you do that, they will not get pushed. And that's also a fact of life. Unfortunately, we don't have that culture here in India. So that's the biggest drawback that we have, I feel, in terms of fitness or in any other field. There's some kind of ego which is stopping people from helping others. I'll talk about that. Either you have to be a woman, a girl, to draw their attention. Nobody's gonna help you, even if you are sincere. What else do you expect? So each to his own. I'm on my own and I'll prove it. Just give me some time. Just comment, like, share, subscribe. Each में background music, I'll try to erase that. बहुत मुश्किल है, but I'll try. Enough of bullshitting. No more bullshit. It's hardcore training. It's not just working out. And that's what I'm doing. It's now or never. मेरा रोज का केले का डोज. कोई प्रोटीन वोटीन नहीं, केला, दूध, मक्खन, यही सब. अब देखता हूँ कि whether I'll get the lemon that I wanted. Let's see. भैया आ गया गलगल? आज भी नहीं है? नहीं गलगल क्यों नहीं आएगा यार? ऑफ कोर्स आएगा ये तो अब मैं जब ले आता हूँ आप कल भी यार. मेरा ना नंबर ले लिया, नंबर लो, जब आएगा मेरे को फोन कर कल आ देना. जाना. ठीक है, मैं कल भी तो आया था. चलो कोई नहीं. गलगल मतलब एक तरह का लाइम होता है, बड़ा वाला. सो आई जस्ट ईट इट रॉ. अब घर की ओर इतना क्योटिक है, मैं बता नहीं सकता हूँ. बहुत ज्यादा chaos है, but that's expected of any city, right? अब मैं थोड़ी सी सब्जी एक आधी खरीद के then घर के लिए निकल जाऊंगा. Too much of chaos है यार. ये देखो कितना chaos है. And लोग कहीं से भी निकाले जा रहे हैं, हाई बीम चलाए जा रहे हैं. I mean, कोई कानून नियम कुछ है ही नहीं दिल्ली में. You know what I mean? अच्छा वाला, तुम वायरल हो जाओगे इंटरनेट में. ओह गॉड, इतना एक्साइट. ऐसे ही होता है ये हर किसी के साथ. बात रहे. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके बेबी, इट्स ओके. तुम बहुत अच्छे हो, शांत हो जाओ. वेरी गुड, वेरी गुड. मेरे को तो इतना मन करता है मेरे को ना